Vande Mataram friends, in last lecture I explained you regarding the globalization in the topic economic reform. Now in this part we will try to understand that in what sequence and circumstances economic reform has implemented, okay, and what are its advantage and disadvantage. To this three things we will try to understand, okay, what gradual change you understood or you have observed with new economic reform, or is there is any change of the life of people. बराबर है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट स्टार्ट इट. दिस इज लास्ट पार्ट एंड हियर आर दिस लेक्चर विल बी ओवर एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेशनल इनकम. लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ग्लोबलाइजेशन के सीक्वेंस परिस्थितियों से जो चेंजेस आए, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. So first what its impact we have observed in foreign trade, उसके बारे में देखते हैं कि भाई हम लोग विदेशों से जो व्यापार करते थे उसमें क्या चेंजेस आया, क्या परिवर्तन आए. सो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन, व्हाट वाज द सिचुएशन, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं. इन द इनिशियल ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू सेट अप द एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड स्टेट फंक्शन in the interest of the nation. After experiencing a long period of foreign rule, which was established after East India Company came to the India for trade, India was not ready to many imported goods. At the same time, because of the poverty and scarcity of foreign exchange, India was compelled to regulate import. Export was also limited. India adopted the mixed economy after independence and straight strategic development through the planning that it was based on Russian model, okay, and our one great statistician Dr. P.C. Mahalanobis, okay, he has implemented this in India. India started setting up basic industries of large scale, and order to establish such huge industries we had to import costly machinery, technology and spare part. Thus the scarcity of foreign exchange on and restrictions were imposed on import of consumer goods. So you know very well, when we imported foreign technology, big machines, then the large amount of our money started to drain in those countries, but we have not benefited. Reason was that हमको क्यों बेनिफिट नहीं हुआ? कारण ये था कि टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही थी, तो हम हमारे देश में क्या नया पैदा करेंगे. अल्टीमेटली होना ये चाहिए था कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में डेवलप होनी चाहिए थी, और उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ध्यान दिया जाने लगा नहीं. हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर होकर रह गए, तो सेल्फ रिलायंस की जो बात थी, आत्मनिर्भरता की बात थी, वो कहीं पीछे छूट गई. ओके, सो नेक्स्ट इज hence in the foreign trade policy in the initial year emphasis was laid upon the measure of protection of domestic industry against foreign competition. Various import restrictions were imposed and export promotion measure was introduced. Later on, along with the traditional item of export like agriculture, produce, handicraft, gem and jewelries, the export of non-traditional industries good was also promoted. Rate of exchange was officially determined and the rupee was devaluated in order to increase export and reduce import. With devaluation, import did become costly, but since the item was imports were necessary for Indian industrialization, there was no significant decline in import. हमारा import non-stop बढ़ता गया
उसके कंपेयर में हमारा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा रहा नहीं, बेसिकली बिकॉज ऐसी कोई हम लोग टेक्नोलॉजिकल चीज़ें तो अपने देश में प्रोड्यूस करते नहीं थे, और जो पैदा करते थे वो हमारे देश में ही पूरा का पूरा यूज़ हो जाता था। तो उसका रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया एंड कंपेयर ऑफ दैट एक्सपोर्ट उतना रहा नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत बड़ा डेफिसिट यानी कि घाटा हुआ, और उससे जो है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन डे बाय डे डाउन ट्रेंड होती चली गई। So traditional industrial goods were also promoted. Rate of exchange was officially determined in rupees. With devaluation, import did become costly. India's industrialization, there was no significant decline in import. Import bills increased, and there was a deficit in Indian balance of payment. I explained you just now. A policy of import substitution was also adopted. Import substitution of policy of substituting import was domestically produced goods that import are reduced and replaced by domestic goods. And in this scenario, in the year 1991, okay, during the period of globalization, how foreign trade policy has changed? Let me talk about it. After 1991, economic policy in India were reformed to enhance trade and investment. Foreign trade policy was made toward looking from a restrictive inward looking one. 1 rupee was allowed to be converted into Indian rupee was allowed to be converted into foreign currencies as market rate from an earlier official conversion. Import-export licensing was made easily. Now, strict licensing excite only the crude edible oil and chemical fertilizer. With promotion of FDI and privatization, foreign companies can now sell variety of goods in India. After globalization, India trade with non-traditional trade partners of the new countries increased, and new trade policy aimed at increase India percentage share in world trade. India became a member of WTO in the year 1995. Trade policy changes were made according to the WTO rules. For example, changes were made in import and export rule, agriculture goods, trade related investment measure, and so on. Now, during the period of economic reform, okay, and how till that period, how evolution in the economic reform has continued from the time of independence, that we will try to understand. In the year 1951, from 1951, India adopted the socialist pattern of planning that you know very well. It was based on Russian model, 5-year planning, and in order to set up a society with equality and adopted narrow, regulated and inward looking economic policy. But after 1991, India made this policy liberal, make oriented outward looking and promoting trade and development. और उसी का ही आप एक पॉजिटिव फल आज आप भुगत रहे हो। भुगतना इन द सेंस पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, आप इंजॉय कर रहे हो। ओके, फेवरेबल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के क्या फ़ायदे हुए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, फ़ायदे भी देखेंगे, नुकसान भी देखेंगे। देखो बच्चों, वन थिंग इज़ दैट ईच थिंग ब्रिंग इट विथ इट गुड एंड बैड। हर एक नया सुधार, हर एक नई चीज़ अपने साथ में अच्छा और बुरा दोनों लेके आती है। जिस तरह से फ्लड आता है तो बुरा यह है कि उसके आए हुए पानी से जो ज़मीन है वो डूब जाती है, गांव बर्बाद हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती है। बट एट द सेम टाइम वो अपने साथ कितना सारा फर्टाइल सॉइल लेके आती है जो एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड कर देती है, तो वो अच्छी चीज़ भी है। तो इट ऑलवेज हैपन, गुड एंड बैड आर द टू डायमेंशन ऑफ एनी मैटर।
हर चीज़ का गलत और सही दोनों पहलू होता है। हाँ, कौन सी चीज़ कितने प्रोपोर्शन में है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ खराबी भी लेके आती है, बराबर है। तो उसके बारे में अब यहाँ पे सोचते हैं कि फेवरेबल इफेक्ट क्या हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म के, ग्लोबलाइजेशन के। इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन increase the significance of the market force of demand and supply owing with the determination of price, wage, interest become market oriented। ये बड़ी मज़ेदार बात हुई कि जो चीज़ें पहले लोगों को वेट करके लेनी पड़ती थी, अब उनके लिए वो चीज़ इजीली अवेलेबल हो गई, वेट नहीं करना पड़ता था। एज पर योर डिमांड, ओके, देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, बराबर है। मनी रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट बिकम वेरी इजी एंड कंफर्टेबल, बराबर। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर हुई। सो wages and interest become market oriented and more realistic and less regulated. Beside owing to reduced regulations, the decision regarding the production, investment and distribution also become market oriented. The strain difference between the domestic and foreign investment narrow down and certain effect favorable to India can be observed. What are the favorable impact? Consumers started getting variety of goods. आज आप देखते हो, you get the goods as per your choice. Nobody is impose their choice on you. You are free to choice the goods. India foreign exchange reserve increase means हमारी फॉरेन, आज की तारीख में आप लोग देख सकते हो दुनिया की टॉप 5th इकोनॉमी में हमारा नाम आता है। इवन हमने फ्रांस को भी पीछे कर दिया है। ये इसी का रिजल्ट है, बराबर है। और आने वाले टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ड्रीम देखते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी हम $5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे, वो पॉसिबल होगा जो भी रिफॉर्म सरकार कर रही है अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि अभी ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो एक्ट सरकार लेके आई है, नो डाउट उसके ऊपर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बराबर है। लेकिन अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन उसके लिए इट इज़ असेंशियल दैट गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूरी है, गवर्नमेंट का सहकार बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर चीज़ का हमारे इंडिया की टेंडेंसी ऐसी है, अनफॉर्चुनेटली। आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है ना, तब भी लोगों ने ऐसे झंडे निकाल के विरोध किया, बराबर है। उन लोगों ने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया ये जो भारत है ये आने वाले 10-15 सालों में फिर से विदेशियों का गुलाम बन जाएगा अगर ये हम लोग ये लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट करते हैं। आज अब 20 साल हो गए, बराबर है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उन लोगों को भी चाहिए जो कभी पावर में बैठे थे कि देश के लिए क्या भला है। बट अनफॉर्चुनेटली आज पंगा ये हो गया है कि आदमी अपने आप को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है रेदर देन कंट्री। पार्टी बड़ी हो जाती है, देश छोटा हो जाता है। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट थिंग एंड ड्यू टू दैट रीज़न आवर प्रोग्रेस हैज़ हिंडर्ड। वो ना हो ऐसा नहीं है कि वी हैव अचीव्ड 100%। अभी तो हम लोगों ने जो है स्टेप्स भरने शुरू किए। अगर कम्प्लीटली इकोनॉमिक रिफॉर्म हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है इंडिया बहुत आगे तक चला जाएगा। बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे गुजराती में कहो तो कोठा सूझ वाला व्यापारियों छे, बराबर है। अच्छी लीडरशिप है, बराबर। ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन है उन लोगों के पास में अच्छी लीडरशिप नहीं है, उनके पास अच्छी लीडरशिप है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो कंस्ट्रक्टिव ये अपोज नहीं कर रहे हैं वो, बराबर है। अगर वो लोग भी अगर कंस्ट्रक्टिवली जो है क्या कहते हैं इस काम में अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट अच्छी चीज़ों के लिए तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए। भाई कोई ख़राब चीज़ अगर कोई कर रहा है और आप अपोज कर रहे हो तो इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल, बराबर है। तो ये चीज़ जो है देश के अंदर
नुकसान वाली होती हैं और कहीं ना कहीं हमने जिस रास्ते को पकड़ा है उसको कहीं ना कहीं वो धक्का देने वाली होती हैं। तो इसका जो है ध्यान रखना चाहिए, बराबर है। और एज अ सिटीजन हम लोगों को भी जो है हर चीज़ की बारीकियों को समझकर जो है फिर उसके सही या गलत नतीजे पर पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए, ना कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम जो है अगेंस्ट में हो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक ब्रॉड माइंड के साथ में हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, तो ही जो है ये कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगा। और हम इस इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसकी नींव मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने बराबर है रखी थी। उनका जो भी क्या बोलते हैं अपने आप को उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, मैं तो क्योंकि देखो हर कोई आदमी क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में कि भाई मेरा नाम हो, मेरी इज्जत ख़राब नहीं होनी चाहिए। उस आदमी ने अपनी इज्जत ख़राब कर ली देश को बड़ा बनाने के लिए, बराबर है। नरेंद्र मोदी कभी चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कि उनके नाम पर जो है कोई धब्बा लगे, कोई उनको जो है भ्रष्टाचारी कह के बुलाए? ये भ्रष्टाचारी का टैग जो है मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर लगा बिकॉज वो इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाकर बदनाम हुए, लेकिन उन्होंने देश को आगे ले आए वो। तो उनका उन्होंने जो ये सेक्रीफाइस किया वो जो है रियल सेंस में जो है उनको, अगर वो सही तरीके से चलता है तो रियल सेंस में उनको दिया हुआ इंडियन लोगों का ट्रिब्यूट होगा। वो तो बात अलग है कि हम इतने कृतज्ञ लोग हैं, हम लोग इतने अनग्रेटफुल लोग हैं कि ऐसी चीज़ों को तो हम ध्यान रखते ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, और ऐसे ही लोग जो है इतिहास बना कर जाते हैं। और वो कभी भी जो है किसी, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। मैं बहुत बार ये चीज़ बोलता हूँ कि ताजमहल इतना ब्यूटीफुल है, रीज़न इज़ दैट कि उसकी नींव बड़ी मजबूत है। उन नींव के पत्थरों को कोई नहीं देखता और ऐसे ही लोग उन नींव के पत्थर बन जाते हैं। दे बिकम द फाउंडेशन एंड नोबडी एडमायर दैट। कोई उनको देखता नहीं है, बराबर है। लोग ऊपर की बड़े बड़े कंगूरों को, बराबर है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की जो मीनार्स हैं उनको देखते हैं, लेकिन नीचे दबे हुए पत्थरों को कोई नहीं पूछता, बराबर है, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग का भार ही उस पत्थर ने उठाया होता है। तो ऐसे ही मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जैसे लोग अपने आप को गलाकर बदनाम कर कर, बराबर है, उन्होंने जो है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके आया। ये भूलना नहीं चाहिए एज अ इंडियन, बराबर है। ठीक है, मुझे कोई मेडल नहीं देने वाला है, पीवी नरसिम्हा राव इस दुनिया से चले गए हैं, बराबर है, लेकिन फिर भी उनके किए हुए कामों को हमें एडमायर करना चाहिए और यही उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट होगी। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हाट इज़ योर ओपिनियन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड योर ओपिनियन शुड बी वेरी फर्म। जब आप इन चीज़ों को लेकर कोई डिसीजन लो तो किसी का सुन के नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि से जो है कहते हैं डिसीजन लो, बराबर है। मैंने किसी से सुन के, अगर मैंने भी लोगों का यही सुना होता था तो मैं भी शायद गालियाँ दे रहा होता था कि हाँ भाई ये तो भ्रष्टाचार करके मर गया करके, लेकिन उस भ्रष्टाचार करने के पीछे उसका जो लॉजिक था, बराबर है, अगर उसको तो अगर आप ध्यान देते हो, और इसके ऊपर किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया, ये मैंने खुद सोचा, मैंने, बराबर है, क्योंकि एक सिंपल एक लॉजिकल बात है बच्चों, कौन आदमी अपनी ज़िंदगी में बदनामी चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि भाई मैं बदनाम हो जाऊंगा, कि हर कोई चाहेगा भाई मेरी इज्जत के साथ में लोग मुझे याद करेगा। क्या बोलते भी हैं, देखो पॉलिटिक्स, मेरे ज़िंदगी में एक दाग नहीं लगा, बराबर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार जो है पार्लियामेंट में बोला था कि मैं जो है क्या कहते हैं, अगर मुझे मेजोरिटी नहीं मिलती है तो आई विल नॉट डू द हॉर्स ट्रेडिंग। अगर ऐसी जो है सत्ता मिलती है तो मैं उसे चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है, किसके लिए? कि भाई मेरे नाम के ऊपर कोई इज्जत पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दे, मेरे को कोई करप्ट है ऐसा नहीं बोल दे। तो वो आदमी तो ये करप्शन का जो है एक काला टीका लेकर जो है मरा है वो इंसान, बराबर है। तो उसको क्या पड़ी थी, उसके खानदान वाले भी पॉलिटिक्स में नहीं है, कहने का मतलब ये है। सो मेरा इतना ही कहना है आप लोगों को, ये जो इतनी बड़ी राम कहानी अभी मैंने की है, अल्टीमेटली इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम अच्छी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को कॉप अप करेंगे, बराबर है, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट की जो है हर एक चीज़ पर जो है हम क्वेश्चन मार्क ना करें, उन लोगों के मंशा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है, आई वांट टू टेल दैट ओनली। ओके, सो नेक्स्ट वन इज
certain sector which are significant in growth but neglected owing the scarcity of the capital। पर बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं, जैसे मैंने उस समय बताया तुमको एग्रीकल्चर के ऊपर कोई वर्कआउट नहीं हुआ था, लेकिन अब सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है। पिछले 5-6 सालों में काफ़ी कुछ सरकार ने किया है, तो इट शुड बी सपोर्टेड। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ फेवरेबल फॉर्म में थी। अब इसके अनफेवरेबल क्या है, तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड। ये बोलने के लिए है बच्चों, लेकिन उन लोगों को भी जो है बहुत सपोर्ट मिला। इंडिया जो है ऐसे ही तो ग्रोथ नहीं कर रहा है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज से कोई ग्रोथ नहीं होती है। छोटी छोटी जगह पर जो है लोगों को जो है रोजगार मिलता है, तब जाके जो है कंट्री में ग्रोथ होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप 1 लाख रुपया आप हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करो, हार्डली 10 पीपल विल गेट द जॉब, एंड सेम 1 लाख रुपीज़ आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करो, बराबर है, आप 30 से 40 लोगों को जॉब देते हो। कहने का मतलब इतना ही है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्रिएट अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो अच्छी बात है, आपके बुक में भले इन्होंने बोला है, आपको पढ़ना भी है, लेकिन ये इसका फैक्ट नहीं है। ओके, सब्सिडीज सरकार ने रिड्यूस कर दी, उसके बारे में मैंने पूरी पिक्चर आप लोगों को क्लियर की। वो अच्छा काम किया, क्योंकि उसके ऊपर सरकारी तिजोरी पर एक्सेस बर्डन पड़ रहा था, बराबर है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आई, बराबर है, उनसे ये एक्सपेक्ट रखी गई कि वो यहाँ के वेलफेयर के लिए भी वर्क करें, ये नहीं कि सीधा पैसा उठा के अपने देश में लेके जाएं, बराबर है। तो ये सब चीज़ें कुछ बातें थी। लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज हुई, बेहतर हुई, लेकिन उसके साथ में जो है बहुत सारे सोशल जो डिस्टर्बेंस थे वो भी बढ़े। ये भी एक हकीकत है बहुत बड़ी, बराबर है। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमारी इकोनॉमी पर, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे भी असर डाला है, दैट वी कैन से। ओके, एंड लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नेशनल इनकम, विच आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड करना, एंड एट द सेम टाइम एनालिसिस ऑलवेज करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर जो बोलते हैं उसको ब्रह्म वाक्य मानने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का भी रिसर्च होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।